नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के अंदर मंदिरों के शहर में आज जम्मू फिल्म फेस्टिवल सेकंड एडिशन जो है वो शुरू हो चुका है। और ये एडिशन जो है मैं बता दूं आपको 3 और 4 तारीख को जो यहाँ पे चलेगा। इस समय मैं जम्मू क्लब में हूँ और इसके साथ साथ अपने थिएटर में भी जो है वो लगभग 15 कंट्रीज़ की 57 फिल्में जो है, शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में जो है वो स्क्रीन की जा रही हैं। और कल इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो बहू फोर्ट में जो बागे बहू है वहाँ पे होगी। इन सारी चीज़ों पे आज आप देख सकते हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम जो है वो खासकर लोकल डोगरी फोक जो है उसको दर्शाया गया और उससे जो है इस कार्यक्रम की जो है इनॉग्रेशन की गई। यहाँ पे यशपाल शर्मा जी, ललित परमू जी जो नोट एक्टर हैं, मुश्ताक काक जो सन ऑफ द सॉइल हैं, उनकी प्रेजेंस में जो है आज इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया। इसके साथ साथ मैं बात करूँ जम्मू टूरिज़्म की, जम्मू टूरिज़्म के जो डायरेक्टर थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद थे, जॉइंट डायरेक्टर जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे और बड़े सारे जो कलाकार हैं। इसके साथ साथ सिविलियन जो नागरिक हैं जम्मू के, वो आज जम्मू फिल्म फेस्टिवल में जो है वो अलग अलग कंट्रीज से जो फिल्म स्क्रीन्स हो रही हैं उनको देखने आए थे। क्या कुछ कहते हैं आए हुए गेस्ट, आइए सुने। Note of gratitude to the entire media. Today again I have a mixed feeling. When we did the first edition, I had similar feelings, and I thought we would be able to do it the very next year. The first edition happened in 2019, and we thought we would do it in 2020 again. Congratulations to the directors Rakesh and Rohit, the advisor Lalit Piramu, and jury head Mushtaq Kak. A special thanks goes out to the Jammu Tourism Department that extended all its help. Looking forward to being part of this festival in the future. For now, my best wishes. Namaste, good evening, this is Kashmira Shah.
Yes, wishing Jammu Film Festival incredible luck and love from my side. I wish I was a part of this year. Last year and the first year I was a part of it and I really enjoyed myself and I promised everybody there that I was going to be back. Well, fortunately we have Ganesh Chaturthi at our house and I'm so sorry I can't be a part of it this year, but I'm sure to be there next year and every year that you have this incredible film festival. I would like to also thank the Jammu Tourism Department for supporting Jammu and showing the beauty of Jammu. Citizens of the lovely city of Jammu. Volume please. This is Prakash Belawadi, actor, congratulating the film lovers of Jammu for hosting the second edition of the Jammu International Film Festival. My personal congratulations to Rakesh and Rohit Bhatt, the festival directors, and the festival advisor Lalit Parimu. Felicitations also to the head of jury Mushtaq Kak. I believe over 150 entries have been received from 40 different countries, out of which the festival committee has chosen to screen 40 films from 15 countries. So enjoy the festival. I hope to be there in the next edition. I'm sorry I cannot personally attend this festival now because of I was touring abroad. So congratulations and happy viewing. Bye. डेलीगेट्स कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी फिल्म में आप लोग फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने शिरकत की। Thank you and I will request our chief guest, our guest of honor, to felicitate our celebrating guest and starting. अच्छा मेरे जरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इट्स योर डे, जाओ आज तो सामने जाओ। जोरदार तालियां रोहित के लिए। जरा मेरे को कॉल करता तो डरते डरते पता नहीं दीदी ने क्या कहता। अभी बताया कि आपको बोलना भी है, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। तो सबसे पहले तो राकेश रोहित ये RR2 है, तीसरा RR और होगा RRR हो जाएगा। उनको बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, मुश्ताक काक जी को जो मेरे भी कितनी फिल्म में मेरे साथ काम किया था उन्होंने, और बड़े ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और इस फेस्टिवल को भी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो शॉर्ट फिल्में हैं, जैसे मैंने भी एक फिल्म अभी बनाई 5 साल में बनाई, मैंने शॉर्टकट नहीं ढूंढा, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। 57 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये उस फिल्म की खूबसूरती है। मतलब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो हरियाणा फिल्म का भी याद नहीं है बेटा। ये यश जी का मीडिया का जो एक रहा है प्रोसेस, यश जी से जब बात हुई कि यश जी फिल्म डोगरी में है, तो इन्होंने एकदम कहा हाँ मैं डोगरी बोल लेता हूँ। मैंने कहा यार कहाँ डोगरी बोल लेता हूँ? कहता भैया मैं हिमाचल में रहा हूँ और हिमाचल में डोगरी बोली जाती है, तो इसलिए मैं बोल लूँगा, डोगरी कोई बात नहीं है। और बाकी आपने फिल्म तो देखी ही थी, उनका डोगरी भी बोली और परफॉर्मेंस भी बढ़िया की, और मैं डायलॉग बोलने आया था तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अच्छा मेरा बोल सुभाष याद करा यार बच्चे नहीं दोस्त ले जा ले अब बच्चे नहीं दोस्त ले वो देने के बोल जिन्हें मंडी की सियासत समझी ली, समझो ने अपनी जिंदगी
थैंक यू। नमस्कार और गुड आफ्टरनून। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने मिस्टर राय साहब और उनकी तमाम टीम, आदरणीय मुश्ताक काक जी, हमारे साथी दिग्गज अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उम्मीद टीम के डायरेक्टर्स और इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स राकेश भट्ट और रोहित भट्ट, साथ ही साथ चार्मिंग एंकर पर्सन और हमारे जम्मू शहर के साथी युवा कलाकार और यहाँ मौजूद एक एक बंदा, उन सबको मेरा प्रेम, मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये सेकेंड एडिशन है, पहला 2 साल पहले हुआ था, तब भी मैं आया था, बहुत अच्छा लगा था। 10-15 मिनट में हमें लगता है सब लोग जो भी आज तक हम लोगों ने सीखा होगा, एटलीस्ट वैल्यू एडिशन डबल का हुआ होगा। जो भी हमारे डिग्निटरीज आज आए हुए हैं, यशपाल जी, ललित जी, मुश्ताक काक साहब, हर चीज़ को, जैसा भी लास्ट में ललित जी ने जो कहा कि वो टाइम के साथ साथ कि हर कोई जो युवा है, हम भी 20 सालों में हमें कुछ ज़रूरत हमारी कुछ नहीं होगी, 40 साल में कुछ और 60 साल में कुछ, और जो ज़रूरत जब रहती है पीछे वाला लगता है कि यार वो टाइम तो हमने ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। निर्दोष मारे जाएंगे। अपराधी कौन मासूम कि मैंने मेरा पालता। आप तीनों तो भाग गए थे सर। तो हर जगह होने से उसका फ़ायदा यही होता है कि जो उभर रहे लोग हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है, बल्कि मिडिल एज लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, रिटायर्ड लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि देखिए हम चाहते थे कि इस दिशा में अपना करियर बनाए, नहीं बना पाए, अब क्यों ना करूँ मैं। +60 में भी अगर किसी ने कुछ पैसे जोड़े हैं तो वो भी इस दिशा में छोटी फिल्म बना सकता है या 4 लोगों को इकट्ठा करके फिल्म बना सकता है। ये बेसिकली एक पैशन तो है ही ना, और वो कभी भी जग सकता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो फेस्टिवल्स का यही बेनिफिट है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आर्टिस्ट का एक्सचेंज, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी समझ आता है कि अगर इस दिशा में हम 4 पैसे लगाएं तो रोज़गार बनता है, काम बनता है, आर्टिस्टिक एक्टिविटी होती है, सभी लोग बिजी होते हैं। और जैसा कि यहाँ पे अभी लेटली टूरिज़्म डिपार्टमेंट थोड़ा सा सामने आया है, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज़ को सामने आना चाहिए। टूरिज़्म का तो प्रचार होता ही है, उसके अलावा भी दूसरे एरियाज़ का प्रचार हो सकता है। सो इट इज़ एक ऑलराउंड बेनिफिट सब दिशा में मिलता है, विच इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड विद आर्ट्स बट इकोनॉमिक्स ऑल्सो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। आप फिल्म मेकर्स वहाँ आएंगे, लोकेशन में पैसा खर्च होता है, लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है, चाहे वो छोटे छोटे स्पॉट बॉय हों, लाइट बॉयज़ हों, है ना, और लोकल आर्टिस्ट को भी रोज़गार मिलता है। तो ये सब इस दिशा में फेस्टिवल्स ज़्यादा मात्रा में होते रहने चाहिए। बट एज़ यू नो कि ऑर्गेनाइज़ करना आसान नहीं है, तो फिर भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा राकेश भट्ट और रोहित भट्ट की कि इन्होंने एक बार फिर एक अच्छा प्रयास किया है। कोविड के टाइम में ये काम हो नहीं पाया था, अभी फिर से हुआ है। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड द टीम वुमेद। यशपाल जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जम्मू के अंदर दूसरा फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है और अक्सर जम्मू में इस तरह के फेस्टिवल होते नहीं हैं, तो इस पे आप कितने महत्वपूर्ण देखते हैं इस तरह का फेस्टिवल, और जम्मू का सिनेमा आने वाले समय में कहाँ पे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी क्षेत्र का सिनेमा हो, जैसे मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं हरियाणा के अंदर मेरी फिल्म को अभी नेशनल अवार्ड मिला है दादा लक्ष्मी को, और मैंने 5 साल में वो फिल्म बनाई है। बस पैशनेट लोगों को सामने आना पड़ेगा और छोटे छोटे शॉर्टकट और जुगाड़बाजी से भागना पड़ेगा और अपने रिलेटिव को कास्टिंग करने से बचना पड़ेगा। अच्छा सिनेमा बनाना है तो अच्छी कास्टिंग, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, और बेशक पैसा कम हो लेकिन पैशन में कमी नहीं आनी चाहिए। और जिस तरीके से राकेश भट्ट, रोहित भट्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस तरीके से सहयोग कर रहा है, मुझे लग रहा है ये लोग बूस्टअप करेंगे तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। बस यंग जनरेशन को और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको पूरा मतलब देखना चाहिए फेस्टिवल को शुरू से आखिर तक। कितनी फिल्में हैं, आप थोड़े से रिच होकर के जाएंगे मेंटली।
थैंक यू। जम्मू फिल्म फेस्टिवल पे बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ सन ऑफ द सॉइल मुश्ताक काक जी हैं। क्या कुछ कहते हैं जम्मू फिल्म फेस्टिवल सीज़न 2 को लेके, जूरी भी कर रहे हैं इस बार जम्मू फिल्म फेस्टिवल में, जानने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब, सबसे पहले आप जूरी कर रहे हैं, बड़ी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए, और जम्मू फिल्म फेस्टिवल 2 जो है होने जा रहा है। जी, इसके लिए मैं जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, और ये जो जम्मू फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इसका फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ हैं और जो फिल्म मेकर हैं तो वो आके देखें, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल सीन पे अच्छी अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्में आई हुई हैं, और उसमें देखें, उसमें से कुछ अगर सीख सकते हैं तो सीख लें, नहीं सीख सकते तो फिल्म देख के एंजॉय कर लें। अच्छा, मैं बात कर रहा था जब जशपाल शर्मा जी रिनोड एक्टर आए थे, ललित परमू जी जो आए थे, वो कह रहे थे कि जो लोग ग्लोबली रिनोड हुए हैं उन्होंने अपने आप को लोकली पहले स्ट्रेंथन किया है, रूट से जुड़े हैं। तो जम्मू के संदर्भ में इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? ये बात उन्होंने बिल्कुल लाख रुपए की कही है। यशपाल जी को रिसेंटली ही नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है रीजनल फिल्म की हरियाणवी भाषा में। और जो रूट्स की बात आप कहते हैं वो इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं शुरुआती दौर में थिएटर कर रहा था और मैं दिल्ली चला गया, तो दिल्ली बहुत बड़ी जगह है कि मैं वहाँ पे जाके करूँगा, मैं नेशनल सिंह पे। वहाँ पे जो संगीत नाटक एकेडमी में उस टाइम के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर भारत रत्न भार्गव जी, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी। मैंने उनके अपना प्रोफाइल दिखाया कि मैंने ये किया। कहता है, बेटा मुश्ताक जी, पहले अपने स्टेट में, अपनी मिट्टी में अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे। जब आप मिट्टी से पहचान नहीं बनाएंगे या मिट्टी से जुड़ के बात नहीं करेंगे, तब तक आप राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बात बन पाएगी। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद मैंने वापस आके मैंने डोगरी नाटक किए। देवयानी, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी सवा सेर गेहूँ, उसका सवा सेर कनक। और ये जब डोगरी नाटक कर रहा था, और इस नाटकों के प्रोसेस में मैंने हमेशा अपने जम्मू की मिट्टी की जो खुशबू थी, हमारा जो फोक एलिमेंट था, क्या गानों में, क्या डांस में, और क्या और चीज़ें जो हमारी छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, उनको लेके काम किया। और वाकई उन चीज़ों ने मेरी पहचान बनाई। जब देवयानी में मैं लखनऊ में शो था, और शो में उसमें एक हमारा फोक सॉन्ग है, जो लड़की विदा होती है घर में, खल्ला देसा माए मेरी है, दो बंजारे आए। तो जब वो उस हॉल में वो गाना गूंजा और लोग परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने नाटक करके मैं वापस आ गया, और लोग वहाँ पे जो हमारे जम्मू के लोग थे, मोहन सिंह जी थे, रविंदर कौल जी थे, डॉक्टर बलजीत सिंह रैना वगैरह थे, इन लोगों से वो पूछते थे, यार वो गाना गुनगुना दो वो जो कहा गया। तो बात बिल्कुल सही यश ने कही कि हमारी जो सोल है, हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो रीजन है, अपनी भाषा है, उस पे काम अगर आप करेंगे तो आपको उसके चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी पहचान क्या, आप जो भी लोग वाकई इसमें कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं वो अपनी ही मिट्टी से जाते हैं। अपनी मिट्टी को भूलना नहीं चाहिए। मैं दिल्ली गया, श्री राम सेंटर में जब मैं था परफॉर्मिंग आर्ट पे, तब माइग्रेशन हुई। माइग्रेंट का जो हमारा जम्मू कश्मीर में एक रहा है, हुआ है, तो मैंने तब वहाँ पे राजा अनंत देव, कलहन की राजतरंगिणी से, जो कि पहला संस्कृत काव्य सोशो पोलिटिकल सिनेरियो पे लिखा गया, कलहन ने लिखा है, जो किसी राजा ने कह के नहीं लिखवाया, उन्होंने लिखा था। उसमें से 120 श्लोक लेके राजा अनंत देव का टाइम जो था, उसमें जो माइग्रेशन हुई, वो मैंने दिखाई। वो मेरी मिट्टी की बात थी। मैंने काली बर्फ़ ड्रामा किया, उसके लिए उसका टेलीविज़न पे सीरियल बनाया, वो सारा मेरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी की। संदेश क्या देना चाहते हो लोकल आर्टिस्ट को जम्मू फिल्म फेस्टिवल को लेके? मैं लोकल आर्टिस्टों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आएँ, फिल्म देखें, सीखें। अगर आप सीखे हुए हैं, आप गुणी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। शायद कोई फिल्म आपको कोई नई चीज़ बता दे, तो आना चाहिए, देखना चाहिए। ये एक मौका मिला है हमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिला, इसका लुत्फ उठाना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जम्मू फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन जो आज जम्मू क्लब में हुआ, और वहाँ पे रिनोड एक्टर भी थे और लोकल लोग भी थे। और साफ तौर पे जब हम यहाँ के चीफ गेस्ट और रिनोड एक्टर से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म है यहाँ के नौजवानों के लिए, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ के आर्टिस्ट के लिए। और अगर कोई अपने आप को ग्लोबली नोट बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकली, रीजनली जहाँ से वह जुड़ा है, जिस रूट से वह जुड़ा है, उसके ऊपर कार्य करे, और जम्मू फिल्म फेस्टिवल उसका एक माध्यम है।
इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए ये जम्मू फिल्म फेस्टिवल है वो आज जम्मू क्लब में जो है शुरू हुआ। आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या राय रखते हैं? इस फेस्टिवल से कितना फ़ायदा जो है वो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को होगा? इस फेस्टिवल से कितना फ़ायदा, जिस प्रकार से हमने जम्मू टूरिज़्म से 2 दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के फंक्शन, जम्मू फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है, इससे जो है अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो जम्मू की हैं वो एक्सप्लोर होने का फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो अलग अलग जगह से लोग आएंगे उनको जो है यहाँ की अलग अलग डेस्टिनेशंस का पता चलेगा। जहाँ एक तरफ यहाँ के आर्टिस्ट के साथ जो है कल्चरल एक्सचेंज होगा और वह टेक्निकली अपनी चीज़ों को और सोलफुल बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो है वो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ के टूरिज़म डेस्टिनेशंस का कि वह जो लोग जो जम्मू में आएंगे उनके लिए ये पता, उनको ये मालूम होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे जो है वो फिल्म्स को शूट्स कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस तरीके के फेस्टिवल से जो है जम्मू टूरिज़्म भी बूस्ट करेगा और जम्मू के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका टैलेंट भी जो है वो बूस्ट करेगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और जम्मू फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी जो आपकी राय है हमें बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।